सेकेंड हाफ का रिकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम में भूल जाती हूँ. So, Shu Shui means mathematics. P Li Shi मतलब history. P मतलब then. तो mathematics then history. And Lishi means Li history. Shi मतलब history. जो भी हमारा history होता है ना, history. हाँ. Li Shi मतलब history and Shu Shui मतलब mathematics. तो ये Nantola means I mean more math is much harder than Harder. history. So P means already I taught you this grammar. I think in HSK 2 I taught you. So the mathematics is mm, much harder than this is THAN than the list history. तो फर्स्ट हम लोगों ने ये वाला वर्ड ट्रांसलेशन करने का टाइम this one I have used, then I went here से लास्ट में गया, then end वाला done listing. तो मैथमेटिक्स इज हार्डर. तो मतलब नॉन मतलब डिफिकल्ट, तो नॉन मतलब हार्डर देन हिस्ट्री. ओके, सो शू शुए एंड लीशी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है. Shu Shui the Lishi. Nanto the नो नो, Nanto. हाँ बोलो. शू शुए पी Shu Shui P Laishi लीश Nantola. लीश Lishi. तो Lishi. नानतोला. Nantola. नान मीन्स डिफिकल्ट, अभी तुमने किया था. तो मीन्स difficult, I mean more difficult. Okay, now bolo kच means height, tall. अच्छा मैम न्यू वर्ड. हाँ. Kच height Tall. structure. I mean short. So cow and this is I mean short adjective. Okay. I. देखो लीशी लीशी बोला ना, लीशी मतलब हिस्ट्री. बोलो लीशी. Lishi. TU. TU means sports. Okay, PT जो बोलते हैं. TU. हाँ TU sports. And Shu Shui. Shu Shui. Math. Shu Shui maths. And Fangpian. Convenient. Convenient. Zhe Xingqian. Zhe Xingqiu. means bicycle. Zhe Xingqiu. च Qi. Qiu. Man. Qiu. एंड छी मीन्स टू राइड. राइड कौन सा वाला राइड है, जब हम लोग जैसे कि बाय प्लेन बाय ट्रेन हम लोग बोलते हैं चो. चो मतलब सीट भी होता है, बाय भी होता है. चो फेची चो हो च. बट जब बाईसाइकिल राइड बोलते तब चो नहीं बोलते, तब ये वाला छी बोलते. छी च शिंग च मीन्स टू राइड द बाईसाइकिल. ओनली बाईसाइकिल टाइम हम लोग ये छी यूज करते हैं. Jiu. Jiu. च्यू मीन्स ओल्ड. Jiu means old used. ऑपोजिट क्या है? Jiu का opposite. सीन होता है. Ma'am. सिनियन हाउ बोलते हैं, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. Okay. Chinyan now, yes, ma'am. And Juan. मतलब टू चेंज. Change to पीएन substitute. पीएन मतलब ऑल्सो चेंज होता है, टू सब्सटीट्यूट. ओके, देखो Okay. कितना न्यू वर्ड, इसलिए मैं बताती हूँ न्यू वर्ड पढ़ाई करो. तीफांग मीन्स Yifang place. 这个地方不好. This place is not good. और 这个地方很方便. This place is very convenient. Chungchie agent. Intermediate agent. हम सारे वर्ड्स एक जैसे लगते हैं मुझे तो अब इनके. हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद जो जब वो लोग बोलते हैं ना, तब सारे वर्ड एक जैसे लगते हैं. एकदम बिल्कुल सही बोला. Chuyao मीन्स main. Hanjiang environment. environment. 这个环境很好. 这个地方的 Fujian 这个地方的环境 this place 的环境 is very good. 这个地方的环境很好. Food Fuching nearby or vicinity. ओके, एंड देन दिस 15 ही हुए. तो इसका ग्रामर जो है, इसका ग्रामर मेनली अभी तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. मेनली देखो, ईटीआर ईशिए तत्वो और तुओल एक्सेट्रा कैन फॉलो an adjective in a comparative sentence indicating the degree of difference between things among
which ETR, ECA indicate a slight difference, while Hantuo, Tuola indicate a big difference. For example, ETR मतलब little bit, ECA मतलब some. तो यहाँ पे ETR और ECA जब बोलेंगे तो हम लोग स्लाइट डिफरेंस बोलेंगे, थोड़ा सा मेरा ड्रेस छोटा है तेरे जो ड्रेस से, हाँ, तो ECA आई हैव लिटिल बिट सम मतलब लिटिल फूड, ओके। लेकिन हम लोग जब हन तो मतलब मोर, हाँ, आज बहुत ज्यादा खाना बच गया, तो तोला मतलब बहुत फीवर है, तो दैट इंडिकेट्स, तो जब भी बोलेंगे इन सेंटेंस, दैट सेंटेंस एग्जाम्पल, इट्स अ बिग डिफरेंस। तो ईटीआर मतलब लेस डिफरेंस, ईशे मतलब लेस डिफरेंस, तो एंड तोला is a big difference. Like a Tashan P Ta way low ether. मतलब big mountain is little bit like a building, like as big as the uh, big low means it's a building. Okay, so यहाँ पे एक है, this will again I will go through because you will get very confused if I go through little bit. I'm just saying it, and this is also one more, huh? So here, like one, two. This is also I will go through later, okay? Because today already you have gone through two. One is ULIUA, and another is what you have learned. Second grammar, Teaching. Yang. Young. Ah, so then if I teach you more, you will get confused. Practice these two, but मैम एक सेकंड दे दीजिए, प्रेस वाला आया है, मैं उसे कपड़े दे दूं एक बार. ठीक है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yes, ma'am. Okay. Then we'll go through this one. This is already you know. So today we have gone through this, this one, and then nuance, little bit grammar, and these two will go, and then we'll, shaka means class will be over. So Okay, ma'am. Lishi means history. Ma'am, Rishi means history. Okay. TU means sports. So this will be F. Okay. Kacha means, Okay. देखो Sports ये, active. हाँ, kacha means height. Height होता है ना kacha, ये होता है, अच्छा। Height. Okay. Chachan means station. Cha means already, Kaicha means driving. That cha. Chachan means station. Shu Shui, already you got. Shu Shui matlab mathematics. Maths. Cha Shing Cha means, bicycle, bicycle. Now you read all six. एक मिनट मैम. ए- Hmm. Hmm. Uh, uh, Lishi. No, not C. Li Shi. I said A. Leisure. Li Shi. A tip of the Hmm. tongue. You should press the tip of the tongue to the upper roof. Relation. Leisure. Hmm. Leisure means history. Hmm. History. See, huh. And Theo. Sports. Hmm. Uh, um, coach. Coach. Kurz means height. Coach. Hmm. Coach. And Chachan. Changchun. Hmm. Chang- Chachan. Changchun. Chan means always station. Okay. Chachan means station. Changchun Station. Hmm. Shushui. 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 Shushui Maths. Hmm.
and bicycle. च Choshincho. बाइसाइकिल। अभी इसको Bicycle. अपोजिट लिखना है। राइट डाउन द एंटोनिम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। जैसे यहाँ पे ता, उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया, लियरू ता, एंड उसको अपोजिट श्याओ। तो इसका बोला था ना शिनियन, शिन का अपोजिट क्या होगा? शिन श- मतलब क्या है? पता नहीं मैम। शिनियन बोलते हैं ना, शिनियन हाउ, शिनियन क्वाइला। अच्छा। अ, नहीं। शिन अच्छा। शिनियन, शिनियन। हम लोग विश करते हैं ना, शिनियन हावला, शिनियन यूफा। हैप्पी 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 हैप्पी, हैप्पी हैप्पी। तो शिन का अपोजिट क्या होता है? हैप्पी। मैम सैड। शिनियन हैप्पी नहीं, शिन का शिन इज क्वाइला मीन्स हैप्पी। शिन का मतलब न्यू। शिनियन, न्यू। शिनियन मतलब न्यू ईयर, नियन मतलब ईयर, शिन मतलब न्यू। ओके, हम्म। तो इसका होगा ओल्ड। हम्म। ओल्ड का चाइनीज क्या है? मैंने ओल्ड का चाइनीज मैंने अभी पढ़ा था। हम्म। इसमें पढ़ा च्यू च्यू, अभी इसी में इसमें पढ़ा। च्यू च्यू, अभी यहाँ पे पढ़ा तुमने, यहाँ पे पढ़ा, देखो ना, नंबर 9। यस मैम, च्यू च्यू च्यू। च्यू। हाँ। अच्छा, काऊ, काऊ का अपोजिट क्या होगा? काउ मीन्स काऊ मीन्स टॉल। तो यहाँ पे देखो आई, सेकंड वाला मिला शॉर्ट। आई, आई शॉर्ट। अच्छा, नान, नान मतलब डिफिकल्ट, अभी मिला नान। नान। रूंगी, रूंगी तुमको हिंदी, रूंगी रूंगी, हिंदी यस मतलब मैम। हिंदी। अच्छा, रूंगी। युआन, युआन मतलब, अच्छा लिख लो, युआन। मीन्स फार अवे। यहाँ पे मिला देखो, युआन तो नहीं मिला, लेकिन नजदीक वाला मिला। नहीं, यहाँ पे नहीं मिला। हाँ, ये देखो, ये लास्ट चीन है ना, लास्ट का चीन। नियर बाय फूचिंग। फूचिन अगर नहीं भी लिखो, ओनली चीन लिख दो। हाँ, चीन मीन ऑल्सो नियर। युआन, उसके बाद चीन लिखो, चीन मतलब नियर। कुए, कुए मीन्स एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। हाँ। चीप। हाँ, टेन ई, टेन ई। एन ई। हम्म। एन ई। हम्म। ओके। फैंग। हैंड को क्या बोलते हैं, वही वाला होगा फैंग का वजह। फैंग मतलब मोटा, फैट। हैंड को जो बोलता है, अच्छा। थीन को वही बोलता है। शो मतलब हैंड है ना, शो मतलब थीन इज ऑल्सो। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग छुट्टी। हाँ, शिन च्यू, शिन मतलब न्यू, च्यू मतलब ओल्ड। बोलो शिन च्यू। शिंचू। और शिन, शिंचू। शिन च्यू, शिन च्यू, शिन। शिंचू। 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 ये शिंचू। अलग अलग वर्ड शिंचू। है। सिन च्यू, सिन च्यू। मैम शिंचू। हाँ। शिंचू। काउ, आई, शिंचू। काउ मतलब टॉल। काउ आई। काउ, आई, काउ। आई। काउ वो आई। आई नहीं बोलते ना, वो आई नहीं मतलब आई लव यू। वो लव वाला आई होता, आई मतलब शॉर्ट। हाँ, लव तो शॉर्ट ही होता है इसलिए शॉर्ट भी होगी। मैम इतनी वोकैबलरी इन्होंने अपनी बना रखी है, तो कम से कम हर चीज के लिए डिफरेंट वर्ड भी बना देते। हर चीज को ना एक के साथ दूसरा घुसा रखा है, पता नहीं क्यों। हाँ, वही तो। एक एक तुमको मतलब एटलीस्ट हैंड शुड बी हैंड ओनली। मतलब भाई, तो हाँ, एक एक वर्ड में उसके दो दो तीन तीन मीनिंग बता रखे हैं। हाथ मतलब हाथ, हमारा हमारा बोलो हैंड का कोई दूसरा मीनिंग होता है क्या, इंग्लिश में और हिंदी में, एशियन कोई लैंग्वेज। मैम हाथ इज हाथ। हाँ, तो शो मतलब हैंड भी है, शो मतलब नहीं, लेकिन कैरेक्टर डिफरेंट है। कैरेक्टर टोन डिफरेंट हो जाता है ना, इसीलिए तो टोन इसको बोलते हैं, टोन बेसिकली। शो हैंड एंड शो मतलब थिंग, क्योंकि कैरेक्टर इज डिफरेंट, अब टोन इज डिफरेंट, तो कैरेक्टर इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई। सी, आपको बोलते हैं विन, विन मतलब और आस्क, हम मैम आपको ये तो सिखाया। वहां के लोग तो प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, जो बेचारे हाँ। सीखते हैं उनको, बाहर वालों को तो नहीं पता चलता ना इतना। हाँ। हाँ, ये और सब मैम टोन तो आप तभी पकड़ पाओगे जब उन लोगों के साथ में रहोगे, या रहोगे। बहुत ही
डीप लेवल के ऊपर सीखोगे। हाँ, इसलिए आपको ये खत्म होने के बाद आपको जो चाहिए ना वो रिलेटेड पढ़ाई करो, जैसे जैसे कि आप उन लोगों के साथ क्या फाइनेंस रिलेटेड आप कॉन्वर्सेशन उसी रिलेटेड आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे जियोग्राफी पर, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी में अरे कुछ दूसरा हिस्ट्री पढ़ा रहा है, जियोग्राफी पढ़ा रहा है, नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशनशिप पढ़ा रहा है, वो हमारे नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन हमें अब अर्न भी करना है ना। जो कुछ भी अभी जो एमएनसी में काम किया मैंने इतना कुछ, ना हमारा हिस्ट्री काम पे आया, ना हमारा जियोग्राफी काम पे आया, ना हमारा नेबरिंग कंट्री का रिलेशनशिप जो हमारा पढ़ाया था कुछ भी काम पे नहीं आया। काम पे क्या आया? सब न्यू वर्ड्स जितना मैंने पढ़ा था वही न्यू वर्ड्स काम पे आया, और ग्रामर काम पे आया, और कॉन्वर्सेशन काम पे आया। मैम आप एक बार में पास हो जाते थे? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है बाद में कि बता कैसे। रही। अच्छा सुनो, तो एक मैं बता रही कि हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, वेन। वेन जैसे वेन मतलब आस्क होता है ना, मैंने सोचा वो खाई वेनी इका वेन थी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सो दैट वेन अगर टोन डिफरेंट करो तो उसका मतलब किस भी होता है। वेन मतलब किस भी, अगर तुम वेन वो वेन नी मतलब आई किस यू, तो अगर टोन डिफरेंट हो जाए ना वो तो वेनी, व्हाट आर यू टेलिंग टू किस मी? मतलब नो, वो आई वुड लाइक वेनी, टू आस्क यू। वो खई वेन मीन्स आई वुड लाइक टू आस्क यू, टोन डिफरेंट, वो टोन में बदल में वो सिखा। खरी वेनी, हाँ, तो वेन वो अनदर खरी। वेन का मतलब वो वेन नहीं। हाँ, व्हाट यू वांट टू स्मेल मी, तो वेन का इतना डिफिकल्ट है। वेन का मतलब आस्क है, वेन का मतलब किस है, वेन का मतलब स्मेल है। तो थ्री वेन एंड थ्री वेन का थ्री आई मीन टोन है, एंड थ्री टोन में थ्री कैरेक्टर है। वेन का जो आस्क वाला मैम वेन, तीन अलग अलग मीनिंग है एक ही उसके। हाँ, तो ना टोन अलग होता है, टोन अलग है तो उसके लिए करेक्टर भी अलग है, लेकिन फीनिन एक है। फीनिन सेम, WEN। हाँ, उसका टोन अलग है तो करेक्टर भी अलग है। तो वेन मतलब आस्क, वेन मतलब किस, वेन मतलब स्मेल, थ्री थिंग्स है। तो इतना डिफिकल्ट है, तो जब कौन सा फुल सेंटेंस दे क्या चाहिए वो, अगर वो वेन नहीं तो, अगर टोन नहीं वो वेन नहीं, अगर टोन अगर चेंज हो जाता है तो वो वे नहीं मतलब आई आस्क यू, वो वे नहीं मतलब आई किस यू, वो वे नहीं मतलब आई स्मेल यू, थ्री थिंग्स होगा। अगर टोन ठीक है तो आपको, नहीं तो लोग हंसेगा क्या बोल रहे मुझे किस करने के लिए आया? तो इतना डिफिकल्ट, दैट इज द रीजन इट। कोई भी एआई इसको कुछ नहीं कर पाएगा। एआई को क्या पता है कि कौन सा टोन यूज करना है, कि इट्स नॉट डायरेक्ट, गूगल ट्रांसलेशन भी है तो उसको थोड़ा ही पता है इतना डिफिकल्ट है, और ग्रामर, दैट इज वाई चाइनीज के एआई और ये बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाएगा, क्या बोले, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होगा, क्योंकि इसका इसका इतना डिफिकल्ट, वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो ये वाला और एक बार, काउ आई, हाँ। देन नान मीन्स डिफिकल्ट, रूम ई, यू रूम पान। मीन्स हाँ, चीन, मैम। चीन मतलब वो होता है फार, आई मीन यूएन मीन्स फार अवे, चीन मतलब नियर। कुए मतलब वेरी कॉस्टली, कुए मतलब कॉस्टली, इसका फीएन ई, फीएन। हिंदी। फांग मतलब मोटा, हाँ, फट। शो, शो मतलब हैंड, तो हम लोग शो मतलब हैंड भी होते हैं, शौची, वो वाला ही शौची, शौची मतलब क्या, मोबाइल, मोबाइल भी होते हैं ना। तो आज कोई ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछो आज के लिए। यहाँ पे मैं अभी हमारा हो गया, तो फिर हम लोग। मैम आप मुझे कुछ मेजर वर्ड्स के जैसे ये एंटोनियम्स आप मुझे बता दोगे, मतलब ऐसे कुछ ना, तो मेरे लिए दो वर्ड्स को ना लर्न करना इजी हो जाएगा। मतलब एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड। हाँ मतलब तो एक ठीक है, मेन वर्ड भी मैं एक मिल लिस्ट जाएगा और उसका। भेजती हूँ, मैं एक जो हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप में लिस्ट भेजती हूँ मैं आपको। एंटोनिम ओके का मैम। एक मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने मेरे दूसरे स्टूडेंट को भी मैंने भेजी हूँ। हाँ, तो आपको भी ओके भेजती मैम। हूँ, ग्रुप में भेजती हूँ मैं, ठीक है। मैम वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए, उन दो मतलब दो वर्ड्स एक साथ लर्न हो जाएंगे मुझे। हाँ हाँ, वो तो इसीलिए तो इन लोगों ने एक्सरसाइज ऐसे टाइप का दिया तो अच्छा हो जाएगा। और मैंने जितना हो सके, जितना तक मैंने पढ़ाया,
प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। जितना पढ़ाया अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ, और हो सके तो जो जो लगता है प्रैक्टिकल बहुत, वो बाय हार्ट करो, मेमोराइज करो। मेमोराइज करने से बहुत अच्छा होता है। आपको थिंक नहीं कर, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि हम लोग सोचेंगे और सॉल्व करेंगे। हमें तुरंत बोलना है मुंह में, कोई मतलब यू विल नॉट गेट अ सेकेंड ऑल्सो टू थिंक एंड say that. So that is why in language में पहले समझो, first you understand, and then if you can memorize that. It is very important, so that because we don't have time to think and say. Interpretation का काम कोई बोलेगा उसी टाइम, विदाउट मतलब बिना सोच के हमें रिप्लाई करना होता है, तो ही that point time you have to understand. You cannot say the wrong translation, wrong interpretation. That is why समझो पहले, समझ after understanding you have to couple of sentences you have to memorize. यस मैम। ओके। सो चाय चेन, चिन थिन। चाहिए मैम। फिर मैं ग्रुप में लिखती हूँ कब क्लास होगा, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ओके आप। चल। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय, हाँ, थैंक यू।